Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well at your homes. Today, in this video, we are going to discuss question answers of lesson 5, parts of a plant. Beta, in this chapter, we have read about various parts of the plant and their functions also, in which way plants help us, and each and every part of a plant works in its own way. Let me give you a quick summary of the chapter. After that, we will discuss question answers. We studied that a plant has two main parts, root and shoot. Root is the portion which is below the ground. There are two types of roots, taproot and fibrous root. Taproot is the main root in which grows directly from the stem, and other various roots grow from that main stem. Carrot and mango are their examples. In fibrous root, roots start growing from the base, from the end of the stem, and there is no main root. All roots are equal in that. Wheat and rice were the examples that we studied. After that, we discussed the functions of root. Roots fix plant in the soil. Roots absorb important minerals and water, etc. Then we read about shoot, the part which is above the ground of a plant is called shoot. Shoot consists of various parts like branches, leaves, buds, flowers, etc. Then we read about stem. Stem is the main part of shoot. Every plant has different stems. Some are hard and some are soft. There are various functions of stem also. Stem carries water from the root and food from the leaves, and it brings both these things to distribute it to the whole plant. And stem supports branches which further support other parts of the plant. Then we studied third part of a plant. We read about leaf. Leaf is important part of root because leaves prepare food for the plant. Leaves are called food factory of the plant also. Leaves prepare food for the plant. Then we read about flower. Flower is the beautiful and colorful part of a plant, and flowers help in reproduction. Then we read about fruits and seeds. Some plants have single seed, and some fruits have many seeds in them. Seeds help in seed germination. When a seed gets enough, in the right amount in which the thing is needed. When a seed gets enough air, water and sunlight, then a baby plant starts growing from the seed, and this process is called seed germination. I have given you a quick recap of the chapter, beta. These questions are based on these points only. Now let us discuss the question answers. Question number 1. What are the two main parts of a plant? एक पौधे के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं? मेन होता है मुख्य. पौधे के मुख्य दो भाग कौन से हैं? आंसर is root and shoot.
रूट होती है बेटा जड़, जो भाग पौधे का जमीन से नीचे होता है। सेकंड इज शूट, शूट होती है टहनी, वो वो भाग पौधे का जो कि जमीन से ऊपर होता है उसे कहते हैं शूट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द difference between taproot and fibrous root? टैप रूट मुख्य जड़ एंड फाइब्रस रूट होती है रेशेदार जड़। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हमने ये बताना है। टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या अंतर है, और मुख्य जड़ और रेशेदार जड़, इन दोनों में क्या अंतर है। आंसर इज tap root. It has one main root. टैप रूट जो है इसमें एक मेन रूट यानी कि एक मुख्य जड़ होती है। हमने जब चैप्टर रीड किया था बेटा तब पढ़ा था इसे, आपने हमने फोटो भी देखी थी इसकी। टैप रूट में एक मुख्य जड़ होती है और बाकी जड़ें उसी जड़ से, उसी एक मुख्य जड़ में से और जड़ें निकलती हैं। डिफरेंस क्या है, फाइब्रस रूट में इट डज नॉट हैव अ मेन रूट। फाइब्रस रूट जो है इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती। इसमें जहां पर हमारी स्टेम खत्म होती है पौधे की, वहीं से बहुत सारी जड़ें निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें कोई भी एक मुख्य जड़ नहीं होती। सेकंड पॉइंट है बेटा, टैप रूट का एग्जाम्पल है मैंगो रोज। इनमें टैप रूट है यानी कि इनमें एक मुख्य जड़ होती है और बाकी जड़ें इसमें से उस एक मुख्य जड़ में से निकलती हैं। फाइब्रस रूट में एग्जाम्पल है वीट, राइस। वीट और राइस में जहां पर इनकी स्टेम खत्म होती है, जहां पर इनका तना खत्म होता है, वहां से बहुत सारी रेशेदार जड़ें निकलनी स्टार्ट होती हैं, ग्रो करती हैं। इनमें कोई भी एक मुख्य जड़ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू फंक्शंस ऑफ अ स्टेम। स्टेम होता है बेटा तना, तने के कोई भी दो फंक्शंस लिखने हैं। फंक्शंस होता है कार्य या काम। तना क्या काम करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने कोई भी दो कार्य लिखने हैं जो तना करता है, हमारी स्टेम करती है प्लांट की। आंसर इज स्टेम कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स। स्टेम जो है, तना जो है, वो पौधे के हर एक भाग तक पानी को ले जाता है। कैरीज मीन्स लेकर जाना, पहुंचाना। तना जो है वो जड़ों में से पानी लेकर हर प्लांट के सारे भागों तक, ऑल पार्ट्स यानी सारे भाग प्लांट के सभी भागों तक पहुंचाती है। सेकेंड इज इट सपोर्ट्स ब्रांचेस। इट यहाँ पर प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है, स्टेम के लिए। स्टेम जो है वो ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, जो डालियां होती हैं, उन्हें सपोर्ट करता है। सपोर्ट करना यानी कि सहारा देना। आप ध्यान से जब एक ट्री को देखोगे, ट्री का जो ट्रंक होता है, जो धड़ होती है, उसमें से ही अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। जो स्टेम है, जो तना है, वो उन ब्रांचेस को सहारा देता है यानी कि संभाल कर रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, what are the different parts
ऑफ अ लीफ, एक लीफ के, एक पत्ते के अलग अलग भाग कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक लीफ में, हमने वो नोट डाउन करने हैं बेटा। आंसर इज लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड होता है पत्ते की धार। मेन वेन, वेन होती है बेटा नस, मेन यानी कि मुख्य, मुख्य नस कौन सी होती है मुख्य नस, पत्ते के बीचों बीच जो एक लंबी लाइन होती है, बहुत बिल्कुल लंबी दिखती है, जो थोड़ी मोटी होती है, वो होती है वेन, उसे हम मुख्य नस यानी कि मेन वेन कहते हैं। जो पत्ते के साइड पर और छोटी वेन्स होती हैं, छोटी नसें होती हैं, वो इसी मेन वेन से निकलती हैं। थर्ड पार्ट इज लीफ टिप। टिप होता है बेटा सिरा, ये है पत्ते का सिरा। एक लीफ के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ ब्लेड, पत्ते की धार, मेन वेन, मुख्य नस, थर्ड है लीफ टिप, पत्ते का सिरा। आपकी पेज नंबर 31 पर आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें और पार्ट्स भी गिवन है आपको, जैसे मिडरिब है, पिटियोल है, आप वो भी आंसर नंबर 4 में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? बीज अंकुरण क्या होता है? आंसर इज growing of seed in baby plant is called seed germination। एक बीज का, सीड होता है बेटा बीज, एक बीज का बेबी प्लांट में ग्रो करना, यानी एक बीज में से बेबी प्लांट का, छोटे पौधे का निकलना, सीड जब थोड़ा सा बढ़कर उसमें से बेबी प्लांट निकलता है, उसे कहते हैं सीड जर्मिनेशन, यानी कि बीज अंकुरण। जब एक सीड को, जब एक बीज को जितनी उसे जरूरत होती है उतना आवश्यकता अनुसार उसे एयर, वाटर और वार्मथ, वार्मथ होती है गर्माहट या गर्मी, जितना टेम्परेचर उसे चाहिए, जब एक बीज को उसके अनुसार हवा, पानी और गर्माइश मिलती है, तो जो सीड के अंदर, बीज के अंदर जो बेबी प्लांट होता है, छोटा पौधा होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्रो यानी कि बढ़ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ग्रोइंग ऑफ सीड इन बेबी प्लांट, बीज का बेबी प्लांट के रूप में बढ़ने को बीज अंकुरण कहते हैं, या अंकुर फूटना कहते हैं। These were your 5 question answers, beta. I hope you were able to understand them. Thank you. Have a nice day.